We have programming fundamentals using C++. Under that, what are the limitations of C language? So we have to use this C++ language. So these are the limitations. We have no data security in C language. We have no reusability of the code in C language. Does not support exception handling. So sometimes we have exception in our code. Exceptions means क्या है कि अगर कहीं पे कोई प्रोग्राम में एरर आ रहा है तो उसको हम हैंडल कैसे कर पाएंगे. That is not to be used in the C language. But we can use this concept in our C++, right? Then no runtime checking mechanism and no namespace feature. अभी जो आपका लैब सेशन था उसमें आप लोगों ने एक कमांड लिखा था यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, राइट? तो वो फीचर आपको उसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, राइट? Then we have procedural programming. Obviously, the procedural programming is defined as a programming paradigm that allows the program to be organized as a set of functions. So we have set of functions in this C++ language. We have user defined functions and we have inbuilt function in the language. For example, I want to generate a random number. Then there is a function rand. I want to add the two numbers or three numbers. Then I can use with the help of add, add function, right? But on the other side, I am writing a code also. ठीक है, जैसे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ c is equals to a plus b. So c is a storing variable. A and B are the two different variables having two different values or same values, and I am adding these two values and storing into C variable, right? Then in procedural programming, the program code is divided into group of smaller programs called functions. अब आपके पास जैसे कैलकुलेटर अगर हम बनाते हैं तो कैलकुलेटर में वी हैव एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस इन आवर सी लैंग्वेज. ठीक है, कैलकुलेटर में आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. कैलकुलेटर आपने नॉर्मल वाले भी देखे होंगे और साइंटिफिक भी देखे हैं. जैसे अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की, कॉस थीटा, साइन थीटा, तो साइन 20 की वैल्यू कितनी होगी, टेन 20 की वैल्यू कितनी होगी, कॉसेक 20 की वैल्यू कितनी होगी, राइट? तो अब दीज आर द मल्टीपल फंक्शंस. ठीक है, ऐड फंक्शन की फंक्शनैलिटी ऐड करेगा, मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, तो उसका एक सर्टेन लाइन ऑफ कोड जिसको हम यूज कर सकते हैं C++ में. Then we have each function performs a specific task depending upon the program logic. See, different people have different perspective and different people or different users have different requirements also. ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि I am using Android phone, then what are the features of the Android phone? What is Android? This is the operating system. Acts as an interface between the user and the hardware, right? लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्मार्टफोन की, तो क्या स्मार्टफोन हैंग नहीं होता? अगर एंड्रॉयड हैंग होता है तो स्मार्टफोन भी तो हैंग होता है. ठीक है, तो प्रॉब्लम अगर सेम है तो क्या सॉल्यूशन सेम निकाला जा सकता है? और अगर सॉल्यूशन सेम है तो दैट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. इट डिपेंड्स अपॉन. But in procedural programming languages, we have, as the name suggests, the procedural programming program code is organized in the form of procedures. कि आप इसमें procedure define कर देंगे छोटे छोटे functions की form में और उनको आप use करेंगे. These procedures are also called as subroutines or functions. ठीक है, अब आपने एक function बनाया add का, एक multiplication का, एक division का, एक subtraction का, एक percentage का, एक average का. तो ये क्या होगा, छोटे छोटे functions जिसको हम नाम देते हैं subroutines. Then we have procedural programming. The function can access and operate its own local data as well as global data shared by all the functions. कुछ variables होंगे जो प्रोग्राम में बिल्कुल हमने एक बार डिफाइन कर दिए and I can use those variables later on and sooner on. कभी बार बार मैं उनको यूज करूंगा, कभी एंड ऑफ द प्रोग्राम, कभी किसी फंक्शन में, किसी क्लास में, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी पैरामीटर के साथ, या कहीं पे उसको मैं यूज करता हूं. दैट इज अ ग्लोबल.
जिसको मैंने एक बार ऊपर डिफाइन कर दिया एंड आई कैन यूज मल्टीपल टाइम्स इन माय फंक्शन. दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स. लोकल वेरिएबल का मतलब है कि मैं उसको किसी फंक्शन में, किसी क्लास में या किसी कहीं एक जगह पे ही यूज कर सकता हूं. देन वी हैव एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम्स. किसी भी फंक्शन को आप कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं इन द प्रोग्राम कोड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सेम टास्क. क्या क्या फीचर्स हैं? टॉप टू डाउन अप्रोच, हेडर फाइल डिक्लेरेशन जो अभी हम लोग कर रहे थे, IOStream, conio.h, maths.h, string.h, these are my header files. Then predefined functions जो पहले से डिफाइंड है और यूजर डिफाइंड जो आप लोग अपनी मर्जी से डिफाइन करके बनाएंगे. देन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, ये हमने डिस्कस करा है. एंड वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है, तो जो भी आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं किस टाइप का वेरिएबल है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इट्स डेटा ऑल्सो, कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, डेट है, बुलियन है, टाइम है, करेंसी है, किस टाइप का डेटा टाइप है जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर. सपोज आई एम डिजाइनिंग अ कैलेंडर, ठीक है, तो मुझे सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट किस चीज का होगा? डेट का, मंथ, ईयर, डेज, 7 डेज, हॉलीडेज, ठीक है, और उसमें मुझे कौन से किस चीज़ के अकॉर्डिंगली हॉलीडे प्रोवाइड करना है, सेकंड सैटरडे, सैटरडे, लास्ट वर्किंग डे, व्हाट्सएवर. तो यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो कौन सा है? डेट. ठीक है. इंटीजर किस लिए चाहिए? उन न्यूमेरिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए. 1 2 3 4, फेब्रवरी है तो 28 या 29, बाकी सारे मंथ्स के लिए आइदर 30 और केस ऑफ 31. ठीक है. अब वो लिखना है मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. तो उसके लिए क्या इंटीजर यूज होगा? नो. उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्ट्रिंग वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू. ठीक है. अब मुझे टाइम जोन डिसाइड करना है कि इंडिया का टाइम जोन क्या है, बाकी एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, बाकी कौन सी कंट्री का किसका कितना टाइम जोन है. तो उसके हिसाब से हम टाइम जोन सेट करेंगे तो उनकी वैल्यू वैसे डिफाइंड हो जाएगी. अगर मैं बोलता हूं ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स का मतलब है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ये सारे जो सिंबल्स हैं हमारे, दीज आर माय ऑपरेटर्स. ठीक है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेंड्स, तो ऑपरेंड्स का मतलब है वेरिएबल, A, B, C, D. ठीक है. जो आप लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दैट आर माय ऑपरेंड्स. डिफरेंस समझ में आया ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स में? विल डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो. और बुक में जो आपका दिया हुआ है ई बाला गुरुस्वामी में, वहां से भी आप लोगों को ये मिल जाए. देन वी हैव अ मेन प्रोग्राम. मेन प्रोग्राम में हमारे पास जो ग्लोबल डेटा है, वी कैन यूज ग्लोबल डेटा एट मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम. देन हाउ मेनी फंक्शंस आर अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर ग्लोबल डेटा. मैंने एक A वेरिएबल बना दिया, एक B वेरिएबल बना दिया, उसको फंक्शन 1 भी यूज कर रहा है, उसको फंक्शन 2 भी यूज कर रहा है. एक मैंने वेरिएबल बना लिया C, जो फंक्शन 3 भी यूज कर रहा है, फंक्शन 4 भी यूज कर रहा है. ठीक है. तो इट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. अगेन द क्वेश्चन इज रिक्वायरमेंट क्या है, बनाना क्या है आपको, व्हाट इज टू बी डेवलप्ड बाय अ यूजर. और यूजर की रिक्वायरमेंट्स और प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट्स क्या आपस में मैच हो रही हैं? whatever is to be written in your manual, SRS, software requirement specification, we have to fulfill that. ठीक है. कई बार जैसे आप लोग मोबाइल फोन परचेज करते हो, तो मोबाइल फोन के साथ एक बुकलेट आता है ना मैनुअल का. उसका यूज क्या है कि जो चीज उसमें मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंगली क्या ये फोन वर्क कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज एन एरर. कोई एरर है जिसकी वजह से वो फंक्शनैलिटी यूज नहीं हो पा रही है. सिमिलरली सॉफ्टवेयर की टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो वी हैव अ SRS डॉक्यूमेंट. SRS इज द होल बाइबल ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने फंक्शंस हैं, कितनी क्लासेस हैं, कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, फीचर्स क्या हैं, ऑपरेट कैसे होगा, फंक्शनैलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी. Object oriented programming, C++ is regarded as a middle level language as it comprises a combination of both high level and low level. इसमें low और high दोनों languages का mixture. C++ was developed by इन्होंने जो Bajrán Stroustrup
starting in 1979 and Bell Labs जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि Bell Labs में हुआ था, which is in Murray Hill, New Jersey, and as an enhancement to the C language, and originally named C with classes, but later it was renamed C++ in 1983. ठीक है, तो जो C के limitations थे उनको कवर करने के लिए हम लोगों ने C लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट किया था. C++ fully supports object-oriented programming, including the 4 pillars of object-oriented development. That is, number 1 is encapsulation, data hiding, inheritance, and polymorphism. Now, what is the difference between procedural versus object-oriented programming languages? Object-oriented में और procedural में difference क्या है? Is emphasis on doing things algorithms. जैसे मैं आपको बताऊं कि आप सिर्फ steps लिख लीजिए, that's it. लेकिन अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो उसमें मेरे पास हम उसमें जो एम्फेसिस अपना दिखाएंगे वो कहेंगे कि डेटा मेरे पास एम्फेसिस है रादर देन एल्गोरिदम. नाउ व्हाट इज दिस डेटा? जो आप वेरिएबल ले रहे हैं, डेटा टाइप बना रहे हैं, तो ये सारा सेट है आपके पास कि अगर मुझे डेटा सेट लेना है तो उस डेटा सेट में क्या क्या आना चाहिए. वेरिएबल किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे, फ्लोट टाइप के होंगे, क्या मुझे क्लासेस बनानी पड़ेंगी या मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. मैनी डेटा आइटम्स आर रिप्लेस्ड एज ग्लोबल सो दैट दे मे बी एक्सेस्ड बाय ऑल द फंक्शंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड इट हैज रिड्यूस्ड द डेटा सिक्योरिटी. ठीक है, ऑब्वियसली जब आप एक ही वेरिएबल को बार बार कहीं पे यूज करते रहोगे तो डेटा सिक्योरिटी इशू होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मोबाइल का पासवर्ड और सिस्टम का पासवर्ड सेम है, उसी सेम पासवर्ड को आप बैंकिंग एटीएम में भी यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग में भी यूज़ कर रहे हो, मोबाइल उसमें भी, फॉर व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? आपने अपने को याद रखवाने के लिए एक पासवर्ड बना लिया, बट इज इट सिक्योर? अगर वो एक पासवर्ड किसी को पता चल गया तो डेटा लीकेज, डेटा कहीं पे भी सिक्योर नहीं है आपका, ना बैंक में, ना मोबाइल में, ना कंप्यूटर सिस्टम में, ना कहीं. ठीक है, बट ऑन द अदर साइड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन. इट प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी ऑल्सो. जब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की, पॉलीमॉर्फिज्म की, डेटा हाइडिंग की, एनकैप्सुलेशन की, पॉलीमॉर्फिज्म की, तो वहां पे डेटा जो है हमारे पास सिक्योर हो. प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस. जैसे मैंने आपको बताया कि ऐड का फंक्शन अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग. ठीक है, बट इन दिस प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स. जब आप एक क्लास बना लेंगे, पूरा क्लास बनेगा ऐड का, तो उसमें ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे अलग अलग. ठीक है, वहां पे वेरिएबल्स अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. राइट, देन वी हैव employs top-down approach in program design and it follows the bottom approach in the program design. इसके examples हैं procedural में Fortran and COBOL languages, और अगर मैं object oriented की बात करता हूँ then we have C++ and Java. C language में जो आपका program save होता है that is the extension is .c. .c लिख के program को आप save कर दीजिए. लेकिन C++ में अगर आप सेव कर रहे हैं तो .cpp. नाउ व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस? अगर आप .c से सेव करेंगे तो जितनी हेडर फाइल आपने C की यूज करी है, प्रोग्राम उसको कैप्चर करेगा. ठीक है, लेकिन जब आप प्रोग्राम को .cpp से सेव करेंगे तो जितनी भी आपकी बैकएंड पे थ्योरी चल रही है वो सारा उठाएगा इसको, C++ को, टर्बो C++ को. ठीक है, अदरवाइज होगा क्या? मान लीजिए आपने C++ के प्रोग्राम को .c से सेव कर दिया, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम है एंड यू हैव सेव दैट प्रोग्राम एट .c. बनाया किस में है? C++ में. सेव कर दिया C में, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आपको प्रॉब्लम होगा. राइट, उसको ठीक करने के लिए फिर आपको रीनेम करना पड़ेगा, .c से .cpp में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, then characteristics of object oriented programming.
अब जैसे कि अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास हम बोल रहे हैं क्लास हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका मैं एक क्लास बना लूंगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना इस क्लास में किसी और प्रोग्राम का कोई स्टूडेंट है, ऑल आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो दिस इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन है? कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर मैं अपने इस प्रोग्राम में कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को लूंगा तो वो एक क्लास बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बीबीए में मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स, बीसीए में कंप्यूटर साइंस वाले होंगे, बीकॉम में कॉमर्स वाले आर द मेंबर्स ऑफ क्लास कोर्स। तो अगर हमने कोर्स नाम की कोई क्लास बनाई है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होंगे वो ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लासेस जो हैं वो यूजर डिफाइंड होती हैं। क्यों यूजर डिफाइंड होती हैं? कि आप हर क्लास का नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट तो उसमें आप डिस्प्ले फंक्शन, टोटल फंक्शन, एवरेज फंक्शन, इन सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन सब का एवरेज क्या है, और उन सब की चीज़ों को मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। मैं इसको फर्दर क्लासिफाई भी कर सकता हूँ डिफरेंट क्लासेस में, राइट। नाउ ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज which is an object oriented system, and they may represent as a person, a place, a bank account, a table of data, or any item that the program has to be handled, right. They may also represent user defined data types such as vectors, time and list, ठीक है। अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हो सामान की तो उस लिस्ट में आपके पास मल्टीपल ग्रॉसरी आइटम्स हो सकते हैं, गारमेंट्स की भी लिस्ट बन सकती है, फुटवेयर्स की भी लिस्ट बन सकती है, डिफरेंट ब्रांड्स के आप लोग लिस्ट बना सकते हो। नाउ यू हैव टू क्लासिफाई। तो मैंने क्लास को बाइफरकेट करा, एक क्लास बनाया जो गारमेंट्स का है, एक क्लास बनाया जो फुटवेयर्स का है, एक क्लास बनाया जो ग्रॉसरी आइटम्स का है। अब इनके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? जो गारमेंट्स वाला क्लास है उसमें कौन से कंपनी के गारमेंट्स? डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। फिर जो फुटवेयर वाला क्लास है उसमें कौन कौन सी कंपनीज के फुटवेयर्स। जो ग्रॉसरी आइटम है जिसमें आपका शुगर, ऑयल, जो होम ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके आप एक क्लास बना के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बना रहे हो क्लास कैलकुलेटर तो क्लास तो बन गई कैलकुलेटर, लेकिन अब कैलकुलेटर तो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। देन यू हैव टू ऐड फंक्शनैलिटी होगी, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मॉड्यूलस होगा, रिमाइंडर होगा, परसेंटेज होगा, एवरेज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इन सब के बेसिस पे ग्रेडिंग देनी है, लेट अस अज्यूम के जिसके 70% अबव है उसको बी ग्रेड, जिसके 90+ है, 90% से अबव है उसको ए ग्रेड, काइंड ऑफ। तो मुझे क्लास के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे कि कौन सी क्लास के ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड और सम बिलो ग्रेड। Then we have a characteristics of object oriented programming as a data abstraction and encapsulation. Data abstraction और encapsulation भी object oriented का ही part है। For example, the wrapping up of data and functions into a single unit of a class is known as encapsulation, ठीक है। हम बोल रहे हैं रैपिंग अप ऑफ डेटा, मतलब क्या है? जैसे आप लोग फॉयल में चीज़ों को रैप करते हो ना, खाने वाली आइटम में, ऐसे ही मैंने एक डेटा टाइप के बेसिस पे सिमिलर टाइप के डेटा को रैप कर दिया, किसमें? एक पर्टिकुलर क्लास में एक डेटा रिप्रेजेंट कराने के लिए। देन इज कॉल्ड एन एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अ क्लास and the data is accessible to the outside world and only those functions which are wrapped in the class can be accessed, ठीक है। These functions provide the interface between the object's data and the program, and the insulation of the data from direct access by the program is called as data hiding or information hiding, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब आप लोग
अपना पासवर्ड एंटर कराते हो तो वो सबको विजिबल हो। वी हैव टू हाइड द डेटा, ठीक है, ताकि जब आप उसको लिखें तो पैटर्न कोई भी हो, चाहे वो डॉटेड है, चाहे वो डॉलर सिंबल में आए, चाहे वो हैश सिंबल में आए, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में आए, लेकिन हमने उसको हाइड किया हुआ है सो दैट द एक्चुअल डेटा इज नॉट विजिबल टू अस, द पैटर्न इज टू बी विजिबल, उसका जो पैटर्न है वो मुझे विजिबल है। देन एब्स्ट्रैक्शंस refers to the act of representing essential features without including the background details of the explanation, right? Then classes use the concept of abstraction and are defined as a list of abstract attributes such as size, weight, cost and functions to operate on these attributes. अब attribute समझिए attribute क्या है। For example, student is a class, स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें हम लोग बनाते हैं ER डायग्राम्स, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का मतलब ही ये है कि जो एंटिटी है और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दूसरी एंटिटी के साथ कैसे मैच हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ टीचर इज एन एंटिटी एंड यू स्टूडेंट एज ए एंटिटी, तो मेरे एट्रीब्यूट्स कुछ कुछ मैच होंगे आपसे। टीचर का नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, माई फोन नंबर, स्टूडेंट फोन नंबर, माई ईमेल आईडी, योर ईमेल आईडी। अब मैं अपने नेम को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो स्टूडेंट के नेम को भी हम फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम में कर सकते हैं। इफ एड्रेस इज माई एट्रीब्यूट, तो एड्रेस में आपका हाउस नंबर भी हो सकता है, सेक्टर हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, ठीक है, स्ट्रीट नंबर हो सकता है, सिटी हो सकता है, प्लेस हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, या नियर बाय जो आप लोग अपना कोई लैंडमार्क देते हैं वो भी हो सकता है, राइट। देन व्हाट इज डेटा बाइंडिंग? डेटा बाइंडिंग मीन्स रेफर टू द लिंकिंग ऑफ अ प्रोसीजर कॉल टू द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द कॉल एंड विच इज द डायनेमिक बाइंडिंग, ऑल्सो नोन एज द लेट बाइंडिंग। अगर मैं डायनेमिक बाइंडिंग की बात करता हूं तो इसका दूसरा नाम क्या है? लेट बाइंडिंग। Okay, means that the code associated with the given procedure call is known until the time of the call at the runtime. जब आप उसको रन टाइम पे भी यूज करेंगे तो भी आपको उसका जो बाइंडिंग वैल्यू है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी इनके सबके प्रोग्राम्स भी आप लोगों को दिखेंगे तो उससे भी आप लोगों को समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। इट इज एसोसिएटेड विद द पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मैंने एक ही क्लास से मल्टीपल वैल्यूज को इनहेरिट करा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं बर्ड्स, बर्ड्स जो हैं वो फ्लाइंग भी होते हैं और नॉन फ्लाइंग भी होते हैं। अगर स्पैरो, ये सारे जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो कुछ पानी वाले जो आपके डक्स हैं और इस टाइप के वो नॉन फ्लाइंग में आएंगे। लेकिन कैटेगरी क्या है दोनों की? राइट। तो इनको मैंने क्लासिफाई कर दिया दो डिफरेंट कैटेगरीज में। समटाइम अब इनके आप एट्रीब्यूट डिजाइन करेंगे तो बर्ड्स के अलग एट्रीब्यूट्स होंगे और जो आपके नॉन फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स अलग होंगे, राइट। ये हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म में होता है मैनी फॉर्म्स। पॉली मीन्स मैनी, फॉर्म मीन्स morphism means forms, right? A function call associated with the polymorphic reference depending upon the dynamic type of that reference. देखिए कंप्यूटर साइंस में दो टर्म चलती हैं, एक चलता है स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है जो स्टेबल है, कांस्टेंट है, और डायनामिक का मतलब है जिसको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका सबसे इजी और बेस्ट एग्जांपल, कई बार आप अपने मोबाइल फोन पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो आपको स्टैटिक फॉर्म में दिखता है। स्टैटिक फॉर्म का मतलब है
अगर आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप पोर्ट्रेट कैसे भी रोटेट करके देखोगे तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो हाइड हो जाएगा, विच इज़ नॉट प्रॉपरली विजिबल टू अ यूज़र। लेकिन अगर मैं उसका डायनामिक व्यू देखता हूँ एंड इफ द वेबसाइट इज अवेलेबल इन द डायनामिक व्यू देन आई कैन सी इट इन द डायनामिक व्यू। अगर मैं उसको रोटेट करूंगा तो वो उसके अपने आप वो रोटेट हो जाएगा, सारे टैब्स विजिबल होंगे, क्लिकेबल जो उसमें इवेंट्स हैं वो मुझे नज़र आएंगे, बटन, चेकबॉक्स, ऑप्शन बटन, ये सारी चीज़ें मुझे उसमें नज़र आएंगी। ऑन दी अदर साइड अगर मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ तो वो फिक्स्ड है, उसको आप चाहे रोटेट करें या ना करें वो स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, देयर इज नो चेंज। देन वी हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको अभी हम कहते हैं मैनी फॉर्म्स। अब आप यहाँ पे देखो, हमने एक बनाया शेप, शेप के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन चल रहा है ड्रॉ, ठीक है। अब इसको मान लिया मैंने ये क्लास है, बट in this case I can use circle, box and triangle, ठीक है। इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन तो एक ही है, ड्रॉ, लेकिन ये ड्रॉ फंक्शन क्या कर रहा है, सर्कल भी ड्रॉ कर सकता है, बॉक्स भी ड्रॉ कर सकता है और ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकता है। दिस इज नॉट फिक्स्ड कि ये तीन ही चीजें ड्रॉ हो सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, व्हाटएवर, rhombus, cuboid, it depends upon you, what do you want to draw। तो आपके पास एक ही फॉर्म था और इस फॉर्म को आपने क्लासिफाई कर दिया फंक्शन को, और उस फंक्शन की मदद से आपने जो ड्रॉ करना था उस ऑब्जेक्ट को आपने डिफाइन कर दिया। फंक्शन इज सेम, देखो ड्रॉ, और यहां पे सर्कल, यहां पे बॉक्स और यहां पे ट्रायंगल, ठीक है। एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। The word polymorphism means having many forms. In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. And a real life example of polymorphism is a person at the same time can have different characteristics. सारे ह्यूमन बींग दिखने में भगवान ने सबको दो हाथ, दो पैर, आईज, सबको एक जैसा दिया है, लेकिन सब दिखने में सब अलग अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो डिफरेंट। मेरी आवाज आप लोगों से मैच हो रही है? सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का जो पैटर्न है, जो आपको आपका गारमेंट्स का, फुटवियर का, वो आपका अलग कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा अलग कैरेक्टरिस्टिक है। सबके डिफरेंट फीचर्स, सब कुछ बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, ये सारी चीजें अलग अलग है, राइट। देन लाइक अ मैन एट द सेम टाइम इज अ फादर, अ हस्बैंड एंड एन एम्प्लॉय। आप ही की फैमिली का एक पर्सन जो किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है और कहीं पे एम्प्लॉय है, बंदा तो एक ही है, इंसान तो एक ही है ना, लेकिन तीन डिफरेंट प्लेसेस पे वो तीन डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। एक फादर का, एक हस्बैंड का, एक ब्रदर का, एक किसी कंपनी के एम्प्लॉय का, ठीक है। अब उस कंपनी में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज में भी कोई क्लर्क लेवल पे है, कोई सेक्शन ऑफिसर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कोई हाई प्रोफाइल ऑफिसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर है, कोई थिंकर है, कोई एक्शनर है। अगर एकेडमिक्स में आता हूँ तो कोई टीचर है, कोई सीनियर टीचर है, कोई जूनियर टीचर है। कॉलेज की बात करें तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट है, कोई प्रोफेसर है, और उन्हीं में से कोई एक प्रिंसिपल है जो पढ़ा भी रहा है और एडमिन भी देख रहा है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाएंगे तो सेम हियरार्की, और उसी में कोई टॉप पे रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर है, ठीक है, और वो एज अ टीचर भी वर्क कर रहा है। तो इंसान एक है, फंक्शनैलिटीज अलग अलग होंगी। देन वी हैव इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल में भी मैं अभी आपको समझाया, जो बर्ड्स वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब बर्ड्स की कैटेगरी में तो हमने फ्लाइंग, नॉन फ्लाइंग ले लिया, लेकिन इनमें भी सब कैटेगरीज फॉलो हो सकती है ना। कैन यू बाइफरकेट द डिफरेंस बिटवीन द पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस? वहां पे जो आपने शेप डिजाइन किया था, क्या आप उसको यहां पे यूज कर सकते हो? चलिए एक बार करके देखते हैं। अगर यहां पे बर्ड है और मैंने यहां पे लिख दिया शेप, बर्ड की जगह शेप एज अ क्लास, तो उसको मैं फ्लाइंग, नॉन फ्लाइंग में बना लूंगा, ठीक है।
फ्लाइंग नॉन फ्लाइंग के बाद जो उसका ड्रॉ फंक्शन था वो यहां यूज होगा? नहीं होगा। तो मुझे यहां पे फंक्शन दूसरा लेना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है भाई, अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालना चाहता हूं या एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना चाहता हूं तो उसमें मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू रेडियस और उस रेडियस का स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि सर्कल का एरिया निकालना है, तो ड्रॉ फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे रेडियस का वैल्यू देना पड़ेगा। वो रेडियस का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आपका पाई वाला वैल्यू है। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस ये आप लोग देख चुके हैं, हमने डिस्कस भी किया कि सी प्लस प्लस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा फंक्शन एक ही था ड्रॉ, लेकिन उस ड्रॉ फंक्शन से ही मैं बॉक्स भी बना रहा हूं, सर्कल भी बना रहा हूं, ट्रायंगल भी बना रहा हूं। ठीक है, ओके, ये थ्योरी अभी आप लोगों ने देखा था। तो यहां पे एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज हैश इंक्लूड, देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट iostream.h, conio.h, these are my header files. Void main is my main function. Void means empty, but I can make it as an integer type also, so I have to write it here as int main. ठीक है, तो यानी कि वो int main में होगा। Then I am writing float num1, num2, sum and average. So what does it mean? Float is a variable, float is a data type, num1, num2, sum and average, these are my, say, सब बोलो ना, वेरिएबल्स। भूलना नहीं है इस चीज को। पता चले मैं पूछूं फ्लोट क्या होता है, आपने बोल दिया वेरिएबल। मैंने पूछा ये क्या है, तो आपने बोल दिया डेटा टाइप। नो, दीज आर माय वेरिएबल्स और ये हमारा क्या है? डेटा टाइप। व्हाट इज सी आउट? इनबिल्ट फंक्शन है प्रिंट कराने के लिए। तो सबसे पहले जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे पास क्या लिखा आएगा? एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले मैसेज देखो कहां से है, यहां पे कोई मैसेज नहीं है ना। देन सीन, हमने क्या सीन करा? num1 की वैल्यू। ठीक है, अब हम ये भी कर सकते थे कि num1 की वैल्यू 10, num2 की वैल्यू 20, फिर इन दोनों का सम प्रिंट कराया और एवरेज प्रिंट कराने के लिए सम डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन दिस इज अनदर वे जहां पे यूजर विल एंटर द वैल्यू ऑफ 2 डिफरेंट वेरिएबल्स num1 एंड num2। 2 डिफरेंट वैल्यूज एंटर हो गई। एंटर होने के बाद हमने इसमें प्लस करा num1 की वैल्यू को और num2 की वैल्यू को। 10 + 10 20। रिजल्ट स्टोर कहां पे होगा? सम वेरिएबल में। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं num1 + num2 = सम। वो एग्जीक्यूट तो हो रहा है लेकिन वो रिजल्ट गलत प्रिंट करा रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज माई स्टोरिंग वेरिएबल। तो ये कहां आना चाहिए? लेफ्ट साइड में। और जिन वैल्यूज को वो स्टोर कर रहा है वो कहां आएंगे? इक्वल टू के राइट साइड में। क्लियर? और देखो सबके आगे सेमीकोलन। सेमीकोलन क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब मैंने बताया आपको कि अगर ये हमें स्मॉल में लिखने हैं तो स्मॉल में ही लिखने हैं। अगर आप यहां पे नम का कैपिटल एन कर दोगे और यहां पे आपने स्मॉल एन कर दिया तो वो एरर देगा। ठीक है, वो आपको एरर शो करेगा कि ये डिफाइंड ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है। तो इसलिए अगर आप यहां पे कैप्स यूज कर रहे हो तो यहां पे भी कैप्स यूज करना। अदरवाइज मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि आप लोग अगर यहाँ पे स्मॉल लेके चल रहे हो ना सबको, तो यहाँ पे स्मॉल ही लेके चलो। राइट, देन वी हैव एवरेज। हमने सम की वैल्यू ली, डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर्स थे। ठीक है, सी आउट कराया, सम = सम, और इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन के मतलब जब सम लिखेंगे और सम का जो वैल्यू आएगा वो कहां चला जाए? नेक्स्ट लाइन। एक होता है /n, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। और अगर मैं लिख दूं यहां पे ENDL
एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो एंड एल लिखना है, स्लैश एल लिखना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। देन एवरेज को प्रिंट कराया, एवरेज वही, और फिर स्लैश एन से आप नेक्स्ट लाइन में चले गए। गेट सी एच टू स्टोर द आउटपुट स्क्रीन। जब आप इस पूरे प्रोग्राम को रन कराएंगे, पहले कंपाइल कराना होता है, उसके बाद रन कराना होता है। कंपाइल हम इसलिए कराते हैं सो दैट कि कोई एरर है तो हमें पता चल जाए, और उसको हम बिफोर रनिंग एग्जीक्यूशन से पहले ही रिजॉल्व कर लें, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वी हैव सिंटेक्स एरर और सिमेंटिक एरर। सिंटेक्स एरर क्या है? सिंटेक्स एरर मींस कि अब जैसे सी आउट ये है, आपने यहाँ पे ये इसका सिंबल यूज करा, लेकिन अब आप इस सिंबल को हटा दो और कहीं और यूज करो, तो ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो फिक्स्ड है। अच्छा, एवरेज निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है, कोई और फॉर्मूला यूज करेंगे आप? यहाँ पे एडिशन के लिए यही होता है, ये दो नंबर्स को ऐड कराना है। अब आप चाहे इससे पहले प्लस लगाओ, इसके बाद में प्लस लगाओ, मीनिंगलेस, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आउटपुट ऑपरेटर जो आपका हम ये बोल रहे हैं सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। और आउटपुट ऑपरेटर के लिए जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं वो ये वाला यूज कर रहे हैं, सी इन इसका ऑपोजिट, ठीक है, दैट इज योर इनपुट ऑपरेटर, ठीक है। ये देखो इनपुट ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। व्हाई एक्सट्रैक्शन? बिकॉज यू हैव टू टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर्स। जितने बच्चे हैं हाँ, सबकी रोल नंबर और सिग्नेचर करा लेते हैं। आप बता दिए, यहाँ लिख दीजिएगा साइन करके कि थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, अच्छा, ठीक है ना। थ्योरी की क्लास पहले हो चुकी है। कोई बात नहीं, अभी क्या चल रहा है वो लिख दीजिएगा। अच्छा, और टाइमिंग लिख दीजिएगा, क्या टाइमिंग, कितने से कितने बजे तक चल रही है, वो हाथ से कर दिए, फिर अगली बार में दे देंगे। स्टूडेंट ये शीट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों को अपना रोल नंबर और सिग्नेचर लिखना, ठीक है। सिग्नेचर सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं करना है। इसको पास कर दीजिएगा। ओके, देन वी हैव कैस्केडिंग ऑफ इनपुट ऑपरेटर्स, ठीक है। कैस्केडिंग में हमने क्या किया कि हमें पता था यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को एंटर करा रहे हैं, लेकिन एक मैसेज की तरह से आए, लिखा हुआ आ जाए सम, फिर उसके बाद सम का वैल्यू, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं कैस्केडिंग। एक टॉपिक आता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस का मतलब है किसको पहले प्रेफरेंस मिल रही है, कौन पहले आएगा। जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडमस रूल इन योर मैथमेटिक्स, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। सिमिलरली ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी यही कहती है कि हमें जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है उसको मैं पहले यूज करूं, राइट। सो फर्स्ट सेंड द स्ट्रिंग सम, जो भी सम का वैल्यू है वो टू सी आउट, उसको आउटपुट में लाने के लिए, एंड देन सेंड्स द वैल्यू ऑफ सम, फिर जो भी वैल्यू है उस सम का स्टोर होने के बाद वो वहां पे लिखा आ जाए। स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, तो अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें, ये हमने बताया हैश इंक्लूड इज माय प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, these are my header files. If you are using online compiler, then no need to write .h, okay, and no need to use this statement. You have to write down the using namespace std, which is a library, जो namespace की library को पहले ही उसमें include कर लिया। अगर आप इसको टर्बो C++ पे रन करा रहे हैं कंपाइलर पे, then you have to use these two statements, okay? और यहाँ पे भी लिखा है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, हेडर फाइल है, दिस इज योर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जिससे आपका प्रोग्राम रन हो गया था, दिस इज अ लाइब्रेरी, दिस इज योर मेन फंक्शन। अगर यहाँ पे हम वॉइड लिख देंगे तो वो एम्प्टी हो जाएगा, और ये है टाइप कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का आएगा। अगर मैं इसको कर दूंगा फ्लोट, तो आपका रिजल्ट फ्लोट टाइप में आएगा, दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन। दीज आर माई ब्रेसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस, ठीक है, ये इस टाइप से बनते हैं। और कुछ स्टूडेंट इसको राउंड ब्रैकेट कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं लगाना होता, राइट। दीज आर माई ब्रेसेस, दिस इज फॉर ओपन द ब्लॉक,
जब आपने मेन फंक्शन तक कोड लिख लिया, अब आपको जो भी कोड लिखना है वो इन ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है। देन वी हैव राइट डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट, वॉट एवर यू हैव टू राइट, दिस इज योर क्लोज द ब्लॉक, कि आपने इस पूरे सेगमेंट को बंद कर। नाउ व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स में आपके कुछ जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कीवर्ड, जैसे मैं बोल रहा हूँ सी इन, सी आउट, इस टाइप से, राइट। देन वी हैव आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में आप अब चाहे प्लस प्लस, माइनस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, ठीक है, तो ये सारे टोकन्स के अंदर ही आते हैं। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो जो आपके डेटा टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फ्लोट है, उसके बाद ASM, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैरेक्टर, डबल, ट्राई। जब हम लूप्स चलाएंगे तो फॉर लूप, डू वाइल, वाइल, और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो ब्रेक, कॉन्टिन्यू, स्विच, इफ, एल्स, एल्स इफ, तो वो सारी जो हैं वो हमारी किस में आती हैं? कीवर्ड्स पे। देन आइडेंटिफायर एंड कॉन्स्टेंट्स, अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखें तो आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ द वेरिएबल, functions, array class, etc. to create a user, to created by the user, and identifiers are the fundamental requirement of any language, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है दैट इज योर वेरिएबल विच इज टू बी नोन एज द आइडेंटिफायर, कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से वेरिएबल की कितनी वैल्यू है, ठीक है। अभी जैसे हम सम वाला प्रोग्राम बना रहे थे, अब मान लो आप गलती कर दो, एवरेज की जगह सम, सम की जगह एवरेज, तो रिजल्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो सम इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द वैल्यूज विच कंसिस्ट ऑफ some variable values that is to be stored in some variable, and whenever you have to calculate the average you have to store the result of some variables and calculate the sum divided by 2, depending upon the number of the sum values you will calculate the average. Any doubt? Identifier naming conventions, only alphabetic character digits and underscores are permitted. Then first letter must be an alphabet or underscore. Then identifiers are case sensitive, जैसे मैंने आपको बताया कि num का अगर आप कैपिटल N यूज कर रहे हैं तो वो सब जगह num को आपको कैपिटल N में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग स्मॉल में लिखते आ रहे हैं तो सब जगह स्मॉल में ही आएगा। रिजर्व कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट रेफर टू द फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट। डिक्लेरेशन ऑफ अ कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करें तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? द कीवर्ड CONST, कॉन्स्ट, उसका डेटा टाइप जो हमने पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बुलियन, जो भी है। कांस्टेंट का आप जो नेम देना चाहते हैं वो, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू, तो ये क्या बन गया? एक कांस्टेंट बन गया, ठीक है, फिक्स्ड हो गया। दिस इज अ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक हमने वेरिएबल लिया, मतलब इसमें हमने कांस्टेंट का एग्जाम्पल बनाया। कैसे? इसको थोड़ा सा जूम एक बार मैं कर देता हूं सो दैट यू कैन सी इट। इज इट विजिबल? विजिबल है ना? हमने कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट के सिंटेक्स में उसके बाद उसका डेटा टाइप, कांस्टेंट का नेम इज इक्वल्स उसका वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे मुझे डेटा टाइप देखने के बाद ही पता चल रहा है कि ये किस टाइप का कांस्टेंट है। दिस इज माय इंटीजर टाइप कांस्टेंट, राइट। कैर, कैर में मैंने चॉइस लिया, जैसे कई बार आप लोग फॉर्म फिल करते हो ना, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। तो उस केस में यू हैव टू राइट वाई हेयर,
तो ये किस टाइप का कांस्टेंट है? कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर टाइटल। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस एंटायर वैल्यू। और ये किस टाइप का कांस्टेंट है? स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। देन वी हैव फ्लोट। फ्लोट में मैंने आपको बताया था, इंटीजर में देयर इज नो, वी कैन नॉट टेक डेसिमल वैल्यूज, बट इन फ्लोट वी कैन टेक अ डेसिमल वैल्यू, राइट? 12.34। ओके, नाउ यू हैव टू प्रिंट दीज वैल्यूज। अब आप लोगों को ये वैल्यूज प्रिंट करने हैं, तो आई हैव टू यूज द सी आउट स्टेटमेंट। और सी आउट स्टेटमेंट का भी सिंटेक्स क्या है कि आपने सी आउट लिखा, सी आउट का सिंबल, उसके बाद जो आपका वेरिएबल नेम है वो आपने लिखा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इस वैल्यू को लिखने के बाद ये तो ऐसे आएगा ना आउटपुट, मैक्सिमम लेंथ लिखा आएगा, चॉइस लिखा आएगा, टाइटल और टेम्परेरी वैल्यू लिखा आएगा। फिर उसके बाद जो इनके अंदर वैल्यू स्टोर है, जैसे मैक्सिमम लेंथ क्या है 100, तो 100 आ रहा है आउटपुट में, चॉइस में y, टाइटल में ये टाइटल, देन टेम्परेरी में दिस वैल्यू। ओके, कुछ पूछते हैं? यू कैन ऑल्सो चेंज दीज वैल्यूज, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस यहां पे होंगे या यहां पे होंगे? कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि सी आउट स्टेटमेंट में तो फिर इन्हीं का रिजल्ट प्रिंट होके आएगा ना। क्लियर है? डेटा टाइप्स का मैंने आपको कुछ 11-12 डेटा टाइप बताए थे जो यूज होते हैं हमारे। डेटा टाइप्स का एक बार मैं चार्ट आपको समझा देता हूं। C++ में वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप। नंबर 1 इज यूजर डिफाइंड, सेकेंड वाज इज बिल्ड इन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड थर्ड इज डिराइव डेटा टाइप जिनको डिराइव किया जाता है। यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, इन्यूमरेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं enum। आफ्टर दैट इन डिराइव डेटा टाइप वी हैव एरे, फंक्शन, पॉइंटर एंड रेफरेंसेस। देन वी हैव बिल्ट इन में इंटीग्रल, वॉइड एंड फ्लोटिंग टाइप। इंटीग्रल में इंटीजर एंड कैरेक्टर, फ्लोटिंग में फ्लोट एंड these are the definition of these data types, ठीक है। I'll share this PPT with you, ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं घर पे भी। And earlier I was discussing with you that what is the exact range of the data type. So here you can see that the range of the character is -128 to +127, right? So this is the range for character value. सिमिलरली ऐसे ही आपको इंटीजर का भी रेंज मिल जाएगा। ये देखो, अगर मैं वैल्यूज लेता हूं एग्जाम्पल में 4, 42, 5233, देन -32, -745, तो इंटीजर इन टाइप की वैल्यूज को प्रिंट कराने में, स्टोर इनिशियलाइज कराने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं 42.10 इवन टू देन 42.00, तो उसके लिए इंटीजर यूज नहीं होगा, उसके लिए क्या यूज होगा? फ्लोट यूज होगा, ठीक है। ओके, अनदर न्यू डेटा टाइप इज बूल। बूल डेटा टाइप कब यूज होगा? जब हम बात करते हैं दो चीजों में, ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, यस नो, ठीक है ना। तो उस टाइप पे आपके पास बुलियन डेटा टाइप यूज होगा। डिराइव डेटा टाइप्स where we have to use arrays, functions, references, pointers, ठीक है। एरे कैसे यूज होंगे जी? जो अभी आपको वो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाया था ना, उसमें आप साइज डिफाइन कर देंगे। सो यू कैन राइट ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इट मीन्स। और अगर आप इंटीजर टाइप बना रहे हैं तो उसका डेटा टाइप इंट। तो ए इज अ इंटीजर टाइप वेरिएबल ऑफ एन एरे हैविंग साइज इज 5, ठीक है। और एरे का बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है?
from 0 onwards, right? Then function is a self-contained program segment that carries out a specific well-defined task. Reference is an alternative name for a variable. That is, a reference is an alias for a variable into a program. A variable and its reference can be used interchangeably. आप reference word use कर लीजिए या variable use कर लीजिए, they can use interchangeably, as both of refer to the same memory location. ठीक है? Then we have user defined data types जिसमें structure, union, enumeration, classes, etc. All right. Then these are the examples. इसको भी यहीं पे complete कर लेते हैं. If I am talking about enumerated data type, so enum is the keyword. Then you have to write the variable name, shape, circle, square, triangle. So these are the three values of shape. Enum, color, then red, blue, green and yellow. Enum, position off or on. ठीक है? All right. Thank you so much, class. एक बार उन सर को बुला. सर भेज दो. सर को भेज दो. सर. जो आपने पढ़ाया है इसमें ना मेरे को मतलब मैंने बेसिक में एक्सेल और एडवांस एक्सेल ये सभी हुआ है तो